Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. India became the first team to win a test match at the Optus Stadium. Yes, the first cricket test match between India and Australia ended in India's 295 runs victory. जी हाँ, इस मैच की जबरदस्ती सिचुएशन आपको बताते हैं कि ये मैच भारत ने 295 रन से जीत लिया। चौथे दिन टेस्ट मैच के भारत ने ये मैच 295 रन से जीतकर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली और साथ साथ भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे दे dethroned Australia from the top position and reclaimed their top position, and they now have the win percentage of 61.11 and they are at the top of the ICC World Test Championship. Australia have gone down to second and they are with 57.69% are at number 2. इस मैच की बात है जनाब, ज़बरदस्त सी सिचुएशन, बहुत सारे रिकॉर्ड, और अगर बात की जाए और इंडिया की अगर बिगेस्ट विन देखी जाए अवे टेस्ट सीरीज में तो ये 30 नंबर पे है। सबसे बड़ी विक्ट्री इंडिया की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ है एट एंटीगा in 2019 where they beat West Indies by 318 runs. Then at Galle in Sri Lanka, they beat Sri Lanka in 2017 by 304 runs. And now their third biggest victory in terms of margin, beat Australia by 295 runs at Perth in 2024. Never ever underestimate the Indians. बहुत सारे पर्सनल माइलस्टोन इंडिया की जान से, विराट कोहली's 30th century, and also he is the most test run scorer for India and Sena wins. He now has 811 runs, surpassing Cheteshwar Pujara, who has 773, Ajinkya Rahane 737, Rahul Dravid 731, and Sachin Tendulkar 644 runs. And in Sena countries, India have won 11 tests in Sena in the last 6 years, 5 tests against Australia, yes, in Australia, 3 against England in England, and 3 against South Africa in South Africa. What a turnaround. India lost the series against New Zealand by 3-0, yes, whitewashed at home, and now they beat Australia in their home. Yashasvi Jaiswal, who became the youngest batsman to score a century in Australia, from his 2 innings, he scored 161. Yes, in the first inning he was out without scoring, and in the second inning he made a brilliant 161 with the help of 15 fours and 3 sixes, and he's averaging 80. The other notable performer was Jasprit Bumrah, captain, leading from the front. From his 2 innings, he captured 8 wickets and his economy was 2.40 and his average was just 9. Yes, he was truly declared man of the match, capturing 5 for 30 in the first inning and 3 for 42 in the second inning. Okay, Australia needing 534 in their second innings were 12 for 3 overnight. Yes, on day 3, they were 12 for the loss of 3 wickets with Nathan McSweeney, Pat Cummins, and Marnus Labuschagne back in the pavilion, while Usman Khawaja was batting on 3, and next to come was Steven Smith. They took their total, और आज की पहली विकेट जो है वो सिर्फ 5 रन का इजाफा होता है। उस्मान ख्वाजा आउट होते हैं 6ठे ओवर में, और हमने देखा कि मोहम्मद सिराज राउंड द विकेट आते हैं, शॉर्ट पिच बॉल करते हैं, उसको पुल करने गए और टॉप एज लगता है और फिर ऋषभ पंत वापस दौड़ते हुए कैच पकड़ते हैं। तो इस तरह आज की पहली विकेट 17 के स्कोर पे, और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की दूसरी इनिंग की चौथी विकेट उस्मान ख्वाजा आउट होते हैं जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 17 और 6ठे ओवर का खेल। लेकिन उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टनरशिप होती है बिटवीन स्टीवन स्मिथ एंड ट्रेविस हेड। जी हाँ, ये 62 रन की पार्टनरशिप होती है 117 गेंदों पे, जिसमें स्टीवन स्मिथ काफ़ी देर क्रीज पे रहे, 56 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 14 रन बनाए। दूसरी जानिब ट्रेविस हेड थोड़ा अटैक कर रहे थे, उन्होंने 61 गेंदों पे इस पार्टनरशिप में, जो कि 62 रन की थी, 62 में से 45 रन ट्रेविस हेड ने बनाए। और जब इनकी टीम का टोटल 79 पे पहुंचा तो तब स्टीव स्मिथ आउट होते हैं 25वें ओवर में। वही मोहम्मद सिराज की एक ऑफ स्टंप के बाहर बड़ा ज़बरदस्त चैनल में गेंद की चौथे स्टंप पे, और बिल्कुल नेगिंग लाइन और लेंथ, बैट्समैन खेलेगा नहीं खेलेगा, फ्रंट फुट पे आएगा बैक फुट पे, ये वो लाइन था जिसको कहते हैं कि लाइन और लेंथ ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, कि जहाँ आपके थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ, बैट्समैन फ्रंट फुट पे नहीं आएगा, बैक फुट पे नहीं जाएगा, ना स्क्वायर कट कर सके, ना फ्रंट फुट पे आके ड्राइव कर सके, लेकिन रिलक्टेंट हो। और वही हमने देखा कि स्टीव स्मिथ
60 गेंदें जरूर खेल ली थी, 92 मिनट तक क्रीज पे रहे, लेकिन 17 ही रन बना सके। कॉट बाय पंत ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोहम्मद सिराज। तो स्टीवन स्मिथ आउट होते हैं 79 के स्कोर पे, और ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम 79। रिमेंबर, दे वर बोल्ड आउट फॉर 104 इन द फर्स्ट इनिंग। और फिर उसके बाद से छठी विकेट जो है 161 के स्कोर पे गिरती है, और 82 रन की पार्टनरशिप होती है बिटवीन मिचेल मार्श and Travis Head of 87. 82 of 87 they both put on for the 6 wicket। जी हाँ, 82 रन की पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप में 47 गेंदों पे 31 रन मिचेल मार्श ने और 40 गेंदों पे 44 रन बनाते हैं ट्रेविस हेड। टीम का टोटल पहुंचता है 161 के स्कोर पे, और यहाँ पे 39 ओवर में छठी विकेट गिरती है ट्रेविस हेड की। जसप्रीत बुमराह आते हैं और जनाब, और आते साथ अपना इम्पैक्ट बाउंसर करते हैं, काफ़ी सर के ऊपर से गुजरती है, लेकिन बैट्समैन के माइंड के साथ खेल रहे हैं, और अगला बॉल उनको ड्राइव करने के लिए बोला, और वहीं पे हल्का सहज, और फिर हमने देखा कि कैच पकड़ा ऋषभ पंत ने। तो 89 हाईएस्ट स्कोरर फॉर ऑस्ट्रेलिया, ही स्कोर्ड 89 फ्रॉम 101 बॉल्स, stayed at the wicket for 153 minutes and hit 8 fours, and his strike rate was 88। तो 161 for 6 ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद से यहाँ पे मजीद 21 रन की पार्टनरशिप होती है, और मिचेल मार्श उसके बाद आउट होते हैं, 7वें बैट्समैन 44वें ओवर में। और इनको भी हमने देखा कि जनाब ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा बड़ा प्लान करके 2 मिडिल स्टंप से बॉल किया, फिर एक हल्का सा और फुल लेंथ बॉल किया, और फिर एक थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल किया, वहाँ से कट करने गए, आगे पड़ी हुई बॉल को कट कर रहे हैं, जबकि आपको फ्रंट फुट पे आना चाहिए था, वो प्ले डाउन हुआ और सीधा विकेट पे जाके लगती है बॉल। तो इस तरह नितेश कुमार रेड्डी ने इनको बोल्ड कर दिया 47 के स्कोर पे। इन्होंने 67 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 17 का स्ट्राइक रेट था। ऑस्ट्रेलिया वर 7 for 182। बस एक कागजी कार्रवाई थी, बाकी विकेटें कितनी और पार्टनरशिप लेके जाती है, लेकिन फिर वही कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो नजर आती है। 45 रन की पार्टनरशिप होती है 8वीं विकेट की बिटवीन मिचेल स्टार्क एंड एलेक्स कैरी। जी हाँ, 62 गेंदों पे 45 रन बनते हैं। मिचेल स्टार्क ने 12 और एलेक्स कैरी ने 27 गेंदों पे 28 रन बनाए, लेकिन मिचेल स्टार्क जो है वो आउट होते हैं, 12 रन बनाए 35 गेंदों पे। वॉशिंगटन सुंदर बॉल करते हैं राउंड द विकेट, और उसको आराम से टैप करना चाह रहे थे, लेकिन जाहिर है टेक्निक नहीं है हवा में। लेकिन ध्रुव जुरेल जो शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े, उनके रिफ्लेक्स एक्शन की दाद देनी पड़ेगी, नैनो सेकंड से उनको रिएक्ट करने के लिए, और क्या ज़बरदस्त उन्होंने इसका ऐसे कैच झपट लिया, और इस तरह मिचेल स्टार्क जो है वो आउट हो जाते हैं 12 रन बना के। ऑस्ट्रेलिया वर 8 for 227, और अगली विकेट भी 227 के स्कोर पे। इसी ओवर की छठी बॉल, आखिरी बॉल पे आउट होते हैं नेथन लाइन। इनको क्लीन बोल्ड कर दिया वॉशिंगटन सुंदर ने, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की 9वीं विकेट गिर जाती है 227 के स्कोर पे। 11 रन का इजाफा होता है, और फिर 238 के स्कोर पे एलेक्स कैरी, यही दोबारा हमने वही देखा, हर्षित राणा शॉर्ट पिच बॉल कर रहे थे, और फिर वहाँ पे एक रिप केज पे बॉल लगती है, उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। लेकिन अगला बॉल जो है वो आउटफॉक्स क्या किया कि बाउंसर नहीं किया, यॉर्कर नहीं किया, स्लोअर वन किया, और स्लोअर पे डिसीव कर दिया, और फिर वो बोल्ड कर देते हैं एलेक्स कैरी को। 36 रन बनाया एलेक्स कैरी ने 58 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके शामिल थे, 62 इनका स्ट्राइक रेट था। और ऑस्ट्रेलिया वर बोल्ड आउट फॉर 238 इन द सेकंड इनिंग्स, प्लेइंग 58.4 overs, and they scored their run at a run rate of 4.05। Travis Head with 89 and 47 by Mitchell Marsh, while Alex Carey with 36 were the 3 significant scorers. Rest of the batting couldn't put up a decent total on the board, or Australia were bowled out for 238 and lost the match by 295 runs. बॉलिंग देखें आप कि क्या 3 जबरदस्त फास्ट बॉलर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज and हर्षित राणा, and they all 3 of them taking 7 wickets, 3 for 42 for Jasprit Bumrah, 3 for 51 for Mohammad Siraj, and 1 for 69 for Harshit Rana. Jasprit Bumrah, 12 overs, 1 made in 42 runs and 3 wicket with economy of 3.50. Then Mohammad Siraj, 14 overs, 2 made in 51 runs and 3 wicket with economy of 3.64. And Harshit Rana, 13.4 overs, 1 made in 69 runs and 1 wicket. And Washington Sundar, 15 overs for 48 runs and 2 wicket, while Nitesh Kumar Reddy, 4 overs, 21 runs and 1 wicket. Summary of the match: India were bowled out for 150. But what a bowling spell by Jasprit Bumrah, the Indian captain, restricting Australia to just 104. 5 for 30 by Jasprit Bumrah, claiming first 3 wickets
and the wickets of Usman Khawaja for 8, Nathan McSweeney for 10 and Steven Smith without scoring. ये तीनों विकेट जो हैं ये मैच का फॉर्च्यून जो है ना यहीं से डिसाइड कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया वर इन डीप ट्रबल, losing 3 wickets for just 19 runs in the first inning in 7 overs. और फिर उसके बाद से हमने देखा कि they were 38 for 5. Half of the side was back in the pavilion for just 38 runs on the board. Remember, India have scored 150. Who would have thought कि India are going to take the lead? जहाँ इतना छोटा टोटल करने के बावजूद इंडिया ने 46 रन्स की लीड ली और बिल्कुल hats off to Jasprit Bumrah and Harshit Rana and Mohammad Siraj. All three fast bowlers capturing all the 10 wickets. 5 by Jasprit Bumrah, 3 by Harshit Rana and 2 by Mohammad Siraj. तो ये वो इम्पैक्ट था इंडियन फास्ट बॉलर का जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में, जी हाँ पर्थ में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ज़्यादातर टीम्स को बंडल आउट कर देता है, लेकिन इस दफ़ा खुद बंडल आउट फॉर जस्ट 104 एंड कंसीडिंग अ लीड ऑफ 46 रन. एंड इन रिप्लाई India scored a brilliant 487 for the loss of 6 wickets with 2 centurion Yashasvi Jaiswal his 4th century 161 and Virat Kohli his 30th century, exactly 100. He remained unbeaten while KL Rahul played a valuable 77 runs. Both put up 201. Yashasvi Jaiswal and KL Rahul put on 201 runs. First wicket partnership और ये ज़बरदस्ती पार्टनरशिप. दूसरे ओपनर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जी हाँ सेंचुरी पार्टनरशिप बल्कि डबल सेंचुरी पार्टनरशिप करने में कामयाब हुए. और इस मैच का रिजल्ट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन 487 के बाद ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला 534, बट दे वर बोल्ड आउट फॉर 238, thus losing the match by 295 रन्स. अच्छा जी, इस मैच के रिजल्ट के बाद इंडिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी पहली पोजीशन दोबारा से हासिल कर ली है. इंडिया के पॉइंट्स की तादाद है जनाब 110. 15 मैच खेले, 9 जीते, 5 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 110 पॉइंट, 61.11 इनका विन परसेंटेज. ऑस्ट्रेलिया पहले से दूसरे नंबर पे चला गया जिसने 13 मैच खेले, 8 जीते, 4 में शिकस्त हुई, 1 ड्रॉ हुआ, 90 पॉइंट है, 57.69 ऑस्ट्रेलिया का विन परसेंटेज. श्रीलंका तीसरे नंबर पे है, 9 मैच खेले, 5 जीते, 4 हारे, 60 पॉइंट है, 55.56 इनका विन परसेंटेज. न्यूजीलैंड चौथे नंबर पे है, 11 मैच खेले, 6 जीते, 5 हारे, 72 पॉइंट, 54.55 इनका विन परसेंटेज. साउथ अफ्रीका 5वें नंबर पे है, 8 मैच खेले, 4 जीते, 3 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 54.17 इनका विन परसेंटेज. इंग्लैंड छठे नंबर पे, 19 मैच खेले, 9 जीते, 9 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 93.40.79 इनका विन परसेंटेज. पाकिस्तान 7वें नंबर पे है, पाकिस्तान ने 10 मैच खेले, 4 जीते, 6 हारे, 40 पॉइंट, 33% पाकिस्तान का विन परसेंटेज. बांग्लादेश 8वें नंबर पे, 10 मैच खेले, 3 जीते, 7 हारे, 33 पॉइंट्स हैं और 27.50 विन परसेंटेज. while West Indies are at the bottom of the table. They have played 9 matches, have won only 1 and have lost 6 matches. They have 20 points and their win percentage is 18.52. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.